Good morning, students. Today we will start a new chapter, single phase transformer. This is the third chapter according to your syllabus, and the name is single phase transformer. Single phase transformer. After this chapter we will do three phase transformer, which is the fourth unit according to your syllabus. But today we will talk about single phase transformer. So, transformer. What is a transformer? What is transformer? First of all, we have to define what is the transformer. I think everybody is familiar with the transformer. Transformer क्या करता है? आप कब ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो? ट्रांसफॉर्मर आप हमेशा जब भी आप देखते हो, टॉयज में भी होता है, कोई भी सर्किट होता है, उसके कभी छोटा ट्रांसफॉर्मर आपने देखा है जो आपका मेनली छोटे सर्किट्स में यूज़ होता है, जिसका कि वोल्टेज लेवल भी आपका देखते हो तो दोनों साइड डिफरेंट होता है. और कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? आप ऐसे देखते हो कि इट इज़ लाइक देयर इज़ अ कोर एंड वी कैन सी ऑन ट्रांसफॉर्मर देयर इज ऑलवेज टू काइंड ऑफ वोल्टेज लेवल. ऑन each side there will be difference in voltage level. So if this is a transformer core, you can see on primary side, one side the transformer level will be different and another side there will be another voltage level. Okay, so the voltage level on both the side of the transformer will be different. Or one more thing, transformer job from which or you have seen everywhere, you can see on the poles which comes under the transmission or distribution system, or you can say distribution transformer. That is also transformer. And on that transformer you have also seen that there is a core and two sides of winding have been shown there, primary winding and secondary winding, जो कि आपके पोल्स पे भी होती है और आपके घर के सामने भी जो लगा होता है, that is also transformer. उसमें भी primary side जहाँ से आपकी लाइन आई, secondary side is connected to your home or to your, it is going towards your home, into your home and connected to your meter. Okay, so according to your basic knowledge, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ट्रांसफॉर्मर होता क्या है. ट्रांसफॉर्मर इज ए डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इट इज अ स्टैटिक डिवाइस. Why we are calling it as a static device? Because there is no rotating part into the transformer. That is why we are calling that it is a static device. So transformer is a static device which is used to raise or lower the voltage. Why we are saying this, that it is used to raise or lower the voltage? Because with the help of transformer we can change or we can get the voltage. We can get the voltage on the secondary side which will be different from the primary side. और हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं by the help of transformer by keeping the frequency constant. By keeping the frequency constant, here we are considering the frequency constant, and it is a static, or we can say it is a device. It is a static device which transfer energy from one circuit to another circuit. Clear? It is also clear that it transfer energy from one circuit to another circuit, but there is no electrical connection between the primary winding or secondary winding. अब primary winding मैंने किसको बोला? Primary winding is where the input is connected, that is called your primary winding, and secondary winding where the load is connected. Okay, that is called your secondary winding. So energy transformation takes place by magnetically. There is no electrical connection between the primary or secondary winding, but energy transformation still takes place, and that is according to magnetically. Okay, and transformer works on the principle of induction also. Okay, so definition में हमने क्या किया? It is a static device which transfer energy from one circuit to another circuit by keeping the frequency constant, or we can say it is used to raise or lower the voltage. It is used to raise or lower the voltage by keeping the frequency constant. ठीक है. अब जो हमने डेफिनेशन में बोला वो हम प्रिंसिपल में भी देखेंगे. प्रिंसिपल इज, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम और द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर. सो हियर इज द
transformer core. This is the transformer core, and this is a magnetic core. This is a magnetic core, and this is your primary winding, and this is your secondary winding. Clear? अब what is the principle? अब हम प्रिंसिपल करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. जो भी हम प्रिंसिपल है, जो भी हम प्रिंसिपल बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. हाउ? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल in transformer there are two windings, primary winding and secondary winding, wound on a or placed on a magnetic core. So this is a magnetic core, this is your one winding primary winding and secondary winding. So transformer has two windings, it has two windings placed on magnetic core, and it works on electromagnetic induction. And if we connect the primary winding to the supply or to the AC supply, what will happen? An alternating flux is set up into the core, alternating according to electromagnetic induction. Whenever the primary winding is connected to the AC supply, alternating flux is set up into the core, and when this flux links with the primary winding, what will happen? An EMF is induced in primary winding, which is denoted by E1. Now, and by the self-induction, EMF is induced into the primary winding. This flux links with the secondary winding also. This alternating flux also links with the secondary winding and produces an EMF into the secondary winding. If the circuit is closed, means if load is connected into the second winding or across the secondary winding, then EMF is also induced into the secondary winding and current flowing through the load. If current is flowing through the load, EMF is also induced into the secondary winding by mutual induction. Mutual induction क्या होता है? Mutual induction होता है कि EMF is induced into the adjacent winding because of the, जो आपका इसकी वजह से एक वाइंडिंग में जैसे दूसरी वाइंडिंग में जो एडजेसेंट वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा, तो उसको हम बोलते हैं बाय म्यूचुअल इंडक्शन. क्लियर? सो दिस इज योर बेसिक प्रिंसिपल. वी आर अप्लाइंग अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन, इनटू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इन ट्रांसफार्मर देयर आर टू वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन अ मैग्नेटिक कोर, and when the primary winding is connected to the AC supply, what will happen? An alternating flux is set up into the magnetic core, and when this alternating flux links with the primary winding, EMF is induced by self-induction. And when this alternating flux also links with the secondary winding, as secondary winding is also connected over the, it is also placed on the magnetic core, so alternating flux also links with the secondary winding. जब ये secondary winding से भी link up करेगा, तो अगर लोड कनेक्टेड है सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस तो करंट फ्लो होगा, सर्किट क्लोज है तो इसमें भी EMF इंड्यूस होगा. ठीक है? इन हिंदी, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है जो कि मैग्नेटिक कोर के ऊपर होती है, मैग्नेटिक कोर के ऊपर लपेटी हुई होती है. प्राइमरी वाइंडिंग हम उसको बोलेंगे जिसके थ्रू हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं. तो जब हमने सप्लाई कनेक्ट किया तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होगा, कहाँ पर? कोर पे, क्योंकि कोर के ऊपर क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग को हमने कनेक्ट किया सप्लाई से. तो बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब सप्लाई देंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ वहां पर फ्लक्स सेटअप होगा जो कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होगा, और जब वो लिंक विद दिस प्राइमरी वाइंडिंग और जब यहाँ इसके साथ लिंकअप करेगा तो यहाँ पर EMF इंड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग की EMF, और वी डिनोट दिस EMF बाय E1. यही फ्लक्स जब हमारा, बिकॉज उसी कोर पे सेकेंडरी वाइंडिंग भी है, तो जब इसके साथ लिंकअप करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंकअप करेगा और सर्किट क्लोज है, सेकेंडरी के क्रॉस हमने लोड कनेक्ट किया है, तो सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर I2, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है I1 इन प्राइमरी वाइंडिंग, तो इसमें भी EMF इंड्यूस होगा बाय म्यूचुअल इंडक्शन. क्लियर? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. अब ये है हमारा
ट्रांसफॉर्मर का ब्लॉक डायग्राम. दिस इज व्हाट? ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर. अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर. अब हम बात करते हैं कि एक प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर होता है, एक आइडियली ट्रांसफॉर्मर होता है. व्हाट इज द आइडियल ट्रांसफॉर्मर? आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो होता है in which transformer there are no losses, means the primary winding has no resistance and no magnetic leakage. Ideally चीज क्या होती है? आइडियल, किसी भी चीज को हम आइडियल क्या बोलते हैं? जब इसमें कोई कमी नहीं होती. ठीक है. इन द सेम वे हम ट्रांसफॉर्मर को भी आइडियल कब बोलेंगे? when there are no losses, there is no magnetic leakage, no winding resistance. अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं है, लीकेज भी नहीं है, तो जितना भी हमने इनपुट में, जितनी भी हमारी इनपुट पावर होगी एग्जैक्टली हमें उतनी ही आउटपुट पावर मिलेगी. तो आइडियली चीज कोई भी आइडियली कब बोलते हैं? जिसकी 100% एफिशिएंसी है. मींस देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लॉसेस, उसमें कोई भी कमी नहीं है. तो जितना हम इनपुट देते हैं उतना ही हमें आउटपुट मिलता है. सो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 100% होती है. फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर कंडीशन क्या होगी कि योर इनपुट पावर, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए देयर इज अ कंडीशन लाइक इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट. क्लियर? अब इनपुट क्या है? इनपुट होती है, मैंने बोला इनपुट पावर. क्लियर? इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. तो इनपुट पावर क्या होती है? पावर फॉर्मूला इज V into I इन केस ऑफ DC सर्किट. यहां हमने AC सप्लाई कनेक्ट की, तो AC के केस में यू ऑलवेज कंसीडर पावर फैक्टर. अब पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज अ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. मींस अगर आपकी वोल्टेज हमने दी और करंट लैग करेगा या लीड करेगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल फाई होता है. ठीक है. दिस इज योर वोल्टेज रेफरेंस. ये आपका करंट फ्लो कर रहा है बट ये वोल्टेज को लैग कर रहा है. मतलब जब वोल्टेज हमने दिया तो बिकॉज ऑफ उसमें कुछ लॉसेस हैं या उसमें किस टाइप का लोड कनेक्टेड है, जहां पर हमने वोल्टेज सप्लाई दी वहां पर किस तरह का लोड कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारा लैग कर रहा है, मतलब बाद में शुरू हो रहा है या लीड कर रहा है, वो वी विल डिस्कस इट लेटर. बट फॉर नाउ ऑन मैंने लिखा cos फाई. तो cos फाई क्या होता है? cos फाई आपका पावर फैक्टर होता है और वो होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल. उसको हम बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज डिफाइंड एज योर पावर फैक्टर. So whenever we are talking about the AC circuit, we have to consider power factor of that circuit कि उसका power factor कितना है. Clear? So ये हम पावर को डिफाइन किया हमने. अब यहाँ पर V1 है, यहाँ पर हमारा क्या होगा? V2 होगा जो लोड के क्रॉस होगा. तो इनपुट पावर क्या होगी? V1, करंट फ्लो करा इसमें I1 और यहाँ का पावर फैक्टर cos I1. अब ये हमारा हो गया इनपुट पावर. आउटपुट पावर क्या होनी चाहिए? इस साइड वोल्टेज है V2, I2 एंड cos I2. क्लियर? दिस इज योर आउटपुट पावर. फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर. तो इनपुट पावर आपकी V1 I1 cos I1 is equal to V2 I2 cos I2. But there is one more condition that for ideal transformer जो आपका ये एंगल है that will remain same. Means cos phi1 will be equal to cos phi2. Because वहाँ पर purely inductive coil है, वहाँ पर कोई लॉसेस है ही नहीं, रेजिस्टेंस लॉसेस भी नहीं है और लॉस जो ये कोर है वो भी लॉस फ्री है और वहाँ पर कोई लीकेज भी नहीं है. तो अगर लीकेज कोर लॉस फ्री कोर है, प्योरली इंडक्टिव कॉइल यहाँ पे अगर कनेक्टेड है तो पावर फैक्टर नहीं होगा. ठीक है. और पावर फैक्टर आपका सेम रहेगा दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी. तो अगर ये दोनों सेम रहते हैं तो क्या क्या रहेगा? V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2. क्लियर? अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? V2 बाय V1. ठीक है. और V2 बाय V1 और I1 बाय I2. ये इधर चला जाएगा इसके नीचे और इसके नीचे ये आ जाएगा. क्लियर? तो
ये आपका हो गया वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब इसको हम क्या बोलते हैं, V2 by V1। हमेशा वोल्टेज डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। रिमेंबर दिस थिंग एंड कीप इन योर माइंड दैट जो भी हमारी वोल्टेज है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स किसकी, नंबर ऑफ वाइंडिंग की। नंबर ऑफ टर्न्स किसकी, जो आपकी वाइंडिंग जो आपने विच इज प्लेस्ड ऑन द मैग्नेटिक कोर, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उसके अकॉर्डिंग दैट डिपेंड्स अपॉन योर वोल्टेज। सो V1 अगर प्राइमरी साइड में वोल्टेज है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग। V2 डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर। अब अकॉर्डिंगली अभी हमने क्या निकाला, V2 डिवाइडेड बाय V1। ये क्या हुआ हमारा वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है। सिमिलरली दूसरा हमने क्या निकाला था, I1 by I2, I1 by I2। दिस इज योर करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्लियर। अब और क्या होता है, एक और चीज होती है टर्न्स रेशियो। ट्रांसफॉर्मर में सम टाइम आपको पढ़ने को मिलेगा कि व्हाट इज द टर्न्स रेशियो, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है व्हाट इज द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज द करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफॉर्मर, एंड व्हाट इज द टर्न्स रेशियो। टर्न्स मींस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। So number of turns in primary winding to the number of turns in secondary winding is called your turns ratio. Clear? This is your turns ratio. So these three are the ratio, और इसको हम sometime transformation ratio को हम K से भी define करते हैं, जो transformation ratio equal to ये equal to I1 by I2। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो N2 by क्लियर। तो ये आपके रेशियोज हैं। क्लियर। सो अभी तक के लिए आप इतना करो, विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।